आपके हाथ में कोई किताब होती है तो क्या लगता है जिसने लिखी है वो किताब उसके जहन में क्या होता होगा? कुछ अल्फाज, कुछ जज्बात, थोड़ी सी स्याही और मिजाजी हालात, बस पन्नों से कुछ ज़ाती बातें और ख्याली कलम से मुलाकात। छप जाए रंगीन कागज़ की एक दिलकश सी जिल्द पिरोकर, न लब हिले, बस आँखों से रूह को मिले एक नए फसाने की सौगात। हेलो, नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। आज के इस वीडियो में फिर से होंगी बातें सिर्फ किताबों और किताबी कीड़ों की। एक किताब की मार्केटिंग किताब छपकर दुकान तक या अमेज़न या किसी भी वेबसाइट तक पहुंच जाने के बाद ही चालू होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रकाशन की तारीख यानी पब्लिशिंग डेट से हफ्तों या महीनों पहले से आप अपनी मार्केटिंग और पब्लिसिटी चालू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इस मार्केटिंग के सिर्फ एक पहलू के बारे में चर्चा करेंगे और वो है बुकस्टाग्राम और बुकट्यूब। कई लोग एक से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं। इनकी अपनी वेबसाइट या ब्लॉग भी हो सकती है। आज के वीडियो में मेरे साथ जुड़ रही हैं बुक ट्यूबर प्रेरिता खंडेलवाल, जिनका चैनल है द बुक क्रिटिक्स। द बुक क्रिटिक्स इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है, जहां पर बुक रिव्यूज़, बुक रिकमेंडेशंस, अनबॉक्सिंग, रील्स और बहुत सारे कंटेंट्स, बहुत सारे इंटरेक्शंस मिलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तो मतलब मेरा फेस एकदम खिल जाता है। इस बात का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, जो मेरा गेस्ट। So let's welcome Prerita to the interaction. Hi Abhinav, thank you so much for having me here. And hello everyone, I am Prerita Khandelwal from the Book Critics. I am a company secretary by profession but a reader and a blogger by passion. The Book Critics जिसकी शुरुआत मैंने 2019 में एज ए इंस्टाग्राम पेज की थी, आज सभी मेजर सोशल मीडिया साइट्स पर एक्टिव है। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुक्स पढ़ें और देखें कि कैसे बुक्स आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। Thank you, Prerita, for being here. Prerita has very recently launched an Instagram live series, Book Time with TBC, where she talks with fellow bookstagrammers or even other authors. Her interaction on 12th June is with author Bhavya Jain. Check that out on her Instagram. I'll leave a link to that video in the description box. I'm also glad to announce कि The Book Critics के अलावा आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ रही हैं अक्रोनी स्क्रिबलर बुकस्टाग्राम की क्रिएटर और एलिगेंट बुक क्लब EBC ऑनलाइन की फाउंडर कवि, a teacher by profession and an artist by soul, an avid reader and a trusted reviewer. Kavi, thank you so much for joining. Thank you, doctor, for inviting me. My name is Kavi and I'm from Kerala. My bookstagram ID is a_crony_scribbler. You can find book reviews, aesthetic images, writings, and pages from a book that I'm not gonna publish, and many more there. Do you know what happens? He dies at the end. I loved everything about this book. The title, the cover, the character, the language, everything. The language of the book is so lucid. The characters who speak in this book use very lucid language. You can also find me on almost every podcast platform, and I share my views on different books there. And my favorite genres include Indian mythology, crime fiction, thrillers, and I'm least interested in romance books. I'm also experimenting my taste in LGBTQIA fiction. Thank you, Kavi. I know you are currently reading my book, The Fourth Kiss. I hope you love it and I'm sincerely waiting for your review and opinion. But this video is not about me and my book. This video is about you. A little bird told me that you will soon be starting your own YouTube channel. I'm looking forward to subscribing. And in the meanwhile, the book club EBC Online already has a YouTube channel, which you can check out from the link in the description below. So, with introductions out of the way, let us talk about Bookstagram. I hope all of you know that this is not a separate app, but only the unofficial name given to the circle of Instagram creators and followers who specifically post content on books. Book reviews, book recommendations, to be read lists, giveaways and whatnot. Somehow, Bookstagram has become more popular than the other spheres of the bookternet. Far more than BookTube on YouTube,
Bookler on Tumblr and BookTok on TikTok. I don't know why Twitter hasn't caught up with the storm. खैर 2020 में जब पैंडेमिक चालू हुआ था, लॉकडाउन लगा था, तो एक तरह से वो एक समय था सोशल मीडिया बूम का। हर सर्कल में, चाहे वो कुकरी हो, डांसिंग हो, सिंगिंग, म्यूजिक, DIY, योग, सेल्फ हेल्प या कुछ भी, लोग YouTube पर नए चैनल्स बना रहे थे, इंस्टाग्राम पर नए अकाउंट्स बना रहे थे, ट्विटर से लेकर टिकटॉक तक लोग सब कुछ देख रहे थे। वहीं उस दौरान कितने ही लोगों को समय मिला पहली बार अपने पढ़ने की ख्वाहिश पूरा करने का। उस समय कोई पुस्तक मेला नहीं लग रहा था, कोई किताब की दुकानें खुली हुई नहीं थी, यहाँ तक कि अखबार भी नहीं मिल रहे थे। तो बुकस्टाग्राम और बुक ट्यूबर्स ने खूब व्यूज बटोरे और Amazon Kindle ने खूब सब्सक्राइबर्स। अक्रोनी स्क्रिबलर बुकस्टाग्राम और EBC बुक क्लब पैंडेमिक से पहले से चल रहा था। आइए कवि से जानते हैं कि क्या उनको ऐसा महसूस हुआ कि पैंडेमिक के समय अचानक से इतने सारे ज्यादा लोग इस सर्कल में जुड़ जाने से इस कम्युनिटी को कुछ नुकसान हुआ? What would कवि say to both readers and authors to navigate through this new normal with such high numbers of casual bookstagrammers against the veterans who have been reading and reviewing books for 5 or more years? Yes, pandemic has exploded the Bookstagram community a lot. There are enormous Bookstagram pages out there who claim to be authentic. It's really hard to differentiate between them. Okay, that's nice, but what do you actually mean by authenticity? Talking about myself, I have only touched the circle of book lovers on social media very recently. How would I or another new author or a casual reader understand which reviewer is authentic? I would suggest you should definitely check out their writings. The way they write, the way they post, the way they put their effort in what they do is very important. It's very hard to survive in a community that's very competitive, and every field has its own competition. So what they do to stand out is the key to find authenticity. You must read their reviews and the way they create content and how they maintain their page. All these can help you to find their authenticity and also understand various platforms they work for, like YouTube or whether it be podcast or any other thing. The effort they put in being consistent with their content creation and the way they are ready to bring it to you is very important. So that's how you find authentic readers on Bookstagram. Thank you कवि for your insightful response. मेरे लिए एक बात और इंटरेस्टिंग है कि कवि की मातृभाषा मलयालम है, मेरी और प्रेरिता की मातृभाषा हिंदी है, और हम तीनों ही इंग्लिश में किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, इंग्लिश में बातें भी करते हैं। मैंने उपन्यास भी लिखा तो इंग्लिश में। An argument can be made that in India, despite Hindi being called the national language and even other languages like Bangla, Marathi, Tamil, Telugu, Assamese, etc., they having their own rich literary culture, English is still one of the most read languages in India. But this may only be applicable to books, textbooks or literary books. But if you think about the overall reading, which means if you include newspapers, well, population-wise, English is very far behind Hindi. This was just a piece of tidbit information. Let me know what you think about this. किसी भाषा विवाद में जाना इस वीडियो का मकसद नहीं है। हम सिर्फ मनोरंजन के बारे में बात कर रहे हैं। मैं अधिकतर किताबें Kindle पर पढ़ता हूँ, और कई लोग ऐसे भी हैं जो ई-बुक्स बिल्कुल पसंद नहीं करते। प्रेरिता से पूछते हैं what are her experiences with different mediums of book publications, Kindle, non-Kindle e-books, paperbacks and hardcovers. मैं बचपन से ही बुक्स पढ़ती आ रही हूँ, और तब तो किंडल या फिर मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल ही नहीं थी, इसलिए मैंने हमेशा से पेपर बैग्स और हार्ड कवर्स ही पढ़े हैं, वो भी स्कूल लाइब्रेरी से बोरो करके। 2016-17 में जब मैंने रीडिंग, जिसे किसी वजह से बंद कर दिया था, वापस से शुरू किया, तो मैंने नॉन किंडल ई बुक्स ही पढ़ी, क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे कि मैं पेपर बैग्स या हार्ड कवर्स खरीदूँ। 2019 में जब द बुक क्रिटिक्स की शुरुआत हुई और हमें ऑथर से काम मिलने लगा और हमारी अर्निंग स्टार्ट हुई, तो मैंने पेपर बैग्स खरीदना शुरू किया, और अब तो मैं सिर्फ पेपर बैग्स पढ़ती हूँ। क्योंकि देखिए, चाहे कोई कुछ भी बोल ले, लेकिन रीडिंग की असली वाइब्स तो तभी आती है जब आपके हाथ में किताब हो और आप उसके पन्ने पलट सके, उसकी खुशबू से एक अलग लेवल का हाई
गहराई महसूस कर सके। और रही बात हार्ड कवर की, तो हार्ड कवर हमेशा से मेरे लिए आउट ऑफ बजट रही है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो हाई मेंटेनेंस भी होती है। And what would be her advice to budding authors who are uncertain on which medium should they publish their books in? सी, बुक पब्लिशिंग इज़ अ कॉस्टली बिजनेस, स्पेसिफिकली अगर आप सेल्फ पब्लिश्ड ऑथर हैं तो, क्योंकि आपको पैसा सिर्फ पब्लिशिंग में ही नहीं लगाना है बल्कि आपको बुक के प्रमोशन में, उसकी मार्केटिंग में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले ऑथर्स को किंडल बुक्स लेकर आनी चाहिए और देखना चाहिए कि पब्लिक का उनकी बुक्स के लिए क्या रिस्पॉन्स रहता है। अगर उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, अगर मार्केट से उनकी बुक के लिए पेपर बैक की डिमांड होती है तो उन्हें फिर पेपर बैक पब्लिश करवानी चाहिए। बात तो आपकी बिल्कुल सही है प्रेरिता। यहीं इसी बात से संबंधित एक और पहलू है पुस्तक मेला। कुछ साल पहले तक भी पुस्तक मेले में जाना मजे का काम होता था। किताब को अपने हाथ में लेकर छू कर देखना, जो ब्लर्ब होता है वो किताब के पीछे, वो पढ़कर खरीदने के बारे में सोचना, कोई ऑनलाइन रिव्यू नहीं, सिर्फ किताब का कवर, किताब की डिस्क्रिप्शन, यही देखकर खरीदते थे बुक फेयर में। जहां पैंडेमिक के पीक के समय में वैसे ही कोई बुक फेयर ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे थे, अब कोविड की बंदिशें हटने के बाद भी बुक फेयर पहले की जैसी तड़क भड़क के साथ नहीं हो पा रहे हैं। प्रेरिता, आपको क्या लगता है बुक फेयर का भविष्य कैसा होगा? बुक फेयर्स किसी भी रीडर के लिए हेवन विजिट से कम नहीं है। हर रीडर अपनी लाइफ में कम से कम एक बुक फेयर तो अटेंड करना ही चाहता है। लेकिन आज के टाइम में जहां ई कॉमर्स का इतना दबदबा है, वहीं पर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये टाइम सेविंग है। और जिस स्पीड से ई कॉमर्स मार्केट ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से आने वाले टाइम में ई कॉमर्स मार्केट ये ऑफलाइन होने वाले बुक फेयर्स को कम्प्लीटली बंद करवा देगा। और इसी बारे में, बुक फेयर्स के बारे में देखते हैं कवि की क्या सोच है। In the era of online book fairs and everything being online because it's pretty much easy to access. But as an old soul and as a person who believes in going to library or bookstore and meeting actual people rather than on virtual platform, I would definitely go to offline book fairs. And I think there are many people out there like me who want to have offline book fairs and meet new people and touch those physical copy and attend workshops happening there. So yes, I think book fairs, offline book fairs should be there and they will be there. I don't think book fairs are going to lose their hype. Book fairs will remain always our favorite. इसको बोलते हैं फूड फॉर थॉट, है ना? लेकिन ये तो सिर्फ हमारा ओपिनियन है। आपका क्या ख्याल है? चर्चाएं तो जारी रहेंगी, लेकिन आज के इस वीडियो को हम यहीं विराम देंगे। कैसा लगा आपको ये इंटरैक्शन? प्रेरिता और कवि के सोशल मीडिया हैंडल्स स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे। अगर आप इनसे किताबों की दुनिया के बारे में कोई भी इंटरैक्शन करना चाहते हैं तो इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप खुद कोई किताब प्रकाशित करवाना चाहते हैं तो अक्रोनी स्क्रिबलर और द बुक क्रिटिक्स, इन दोनों माध्यमों से, इन दोनों चैनल से आपकी किताब को बहुत बढ़िया एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है, एक बहुत बढ़िया रीच मिल सकती है, पहुंच मिल सकती है। अगर आपको ये इंटरेक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसे बुकस्टाग्रामर्स और बुक ट्यूबर्स के साथ बातचीत, चर्चाएं, इंटरैक्शंस और देखना चाहते हैं इस चैनल पर तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अपनी किताबी दीवानगी जारी रखिए और अगले वीडियो तक मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल द वर्सेटाइल डॉक्टर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप थे द वर्सेटाइल डॉक्टर के साथ और इस वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए गर्व और गौरव की बात है। इट इज माई प्राइड एंड प्रिविलेज टू बी एबल टू कनेक्ट विथ यू थ्रू दिस वीडियो। नमस्कार। एक बार फिर मैं कहूँ, मेरी किताब, मेरा नॉवेल द फोर्थ किस अभी Amazon.in पर, किंडल पर उपलब्ध है, ज़रूर पढ़िएगा।